As you know, Akshay Patra has 3 organizations in India, USA and UK, and I head the UK chapter. Wonderful. How did you get connected with this organization? I've always been inspired to do something in my life. I wouldn't say charity, but do something good, not necessarily to just benefit for myself. And when my uncle, Mr. Chamaria, who is a very big donor for Akshay Patra, decided to open a organization, a chapter in the UK, he actually came over to the UK and he came to our home, and my husband Abhishek and myself, literally sitting over the dining table, he was looking for somebody to get involved. And it was such a wonderful cause. I've lived in India, I've grown up, I've seen how children live there, the poverty that exists. I've grown up seeing, my servants working for me, their children, absolutely no money, no education, and literally because of their illiteracy, that intelligent children in India are deprived of a good lifestyle. And when this cause came around, that we can actually feed children, and by feeding children we can actually get them to come to get an education, it was such a heart-rendering subject that I immediately thought, why not? This is what I suppose I was meant to do. As you know, when a family is hit by poverty, the first thing that happens is the girl is taken out of the school, and then they are put into doing laborious tasks so they can earn the money. And they always let the men go to school. That's how somehow the Indian mentality is. Obviously, the mothers are very bothered that their girls are not getting food and education, but they are helpless in the situation. But now with Akshay Patra providing meals in schools, even the mother is actually trying to send their girl child to the school. And with the girl child going to school, we always say that it's a nation-building exercise. Because when you feed a man, you feed one person and you give one person education. When you feed a girl, you give not the girl education, an entire family an education. Because she is actually the person who actually can really lift the family out of the poverty cycle. आपको नहीं लगता? मैं कोई खास विषय पर बोलने यहाँ नहीं आया हूँ. मैं एक मैसेज, एक संवेदना का जन्म कराने के लिए आया हूँ कि आपको नहीं लगता कि ऐसे कार्य में यदि कुछ हम देंगे तो देश भी योग्य है, स्थान योग्य. जहां गरीबी हो वहां ये प्रवृत्ति चलनी चाहिए. स्थान मानी देश का ही टुकड़ा नहीं, लेकिन संस्था को भी आप स्थान समझ सकते हैं कि जो उसका एक एक पैसा 100 रुपये का 3 गुना करके जो समाज के भूखे बच्चे तक और शिक्षा के लिए पहुंचते, तो ये देश मेरी दृष्टि में योग्य बन जाता है. दूसरा, समय है, लोग भूखे हैं, काल दिखाता है कि ऐसा हो रहा है, तो ये बात भी सिद्ध हो जाती है. और पात्रता भी है. मैंने शुरुआत में मेरे प्रवचन में कहा कि भूखे की भूख ही उनकी पात्रता है. नंगा आदमी ठंडी में ठिठुर रहा है तो उसकी नग्नता ही उनकी पात्रता है. और एक मरीज बिना औषधि प्राण तोड़ रहा है तो उसकी, भले गुंडा हो, डाकू हो, शराबी हो, कैसा भी हो, लेकिन उनकी ये हालत ही उनकी पात्रता बन जाती है. हाँ, मैं जानता हूं हमारे यहाँ धर्मों के कई प्रवाह आए. कुछ धर्मों में ऐसी बातें आई है कि भाई पीड़ित हो उसको पीड़ित रहने दो, उसको कुछ मदद करोगे तो वो अपना कर्म ठीक से नहीं भोग पाएगा, तो कर्म निर्जरा नहीं होगी. ऐसी भी बात, सबकी अपनी अपनी सोच है. लेकिन सही में जो मानव है वो ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता. ये उनकी पात्रता है. देना देश देखकर, काल देखकर और पात्र देखकर देना. आपको यदि ऐसा लगा हो जैसे मुझे लगा, मैं कुछ समय से इस प्रवृत्ति से वाकिफ हूं, भूटान में और वाकिफ हुआ. मेरे भाई बहन,
आप भी अपनी दबी हुई संवेदना को प्रकट करिएगा। देना हर हाल में शुभ है, लेना दोष हो सकता है, लेकिन देना सदैव शुभ है। एक हिंदी कवि की कविता, उसका एक विचार था कि एक आदमी जा रहा था और उसने कुछ पेड़ देखे, तो एक पेड़ को देखकर, वृक्ष को देखकर वो आदमी पूछता है कि आप कौन है? तो उसने कहा मैं वृक्ष हूं, मैं पेड़ हूं। अच्छा, फिर शायर पूछता है आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम नीम है, मैं नीम का पेड़ हूं, मेरा नाम नीम है। अच्छा, पूछने वाला भी योग्य है और जवाब भी बिल्कुल प्रामाणिक। मैं वृक्ष हूं, मेरा नाम नीम है। तो पूछने वाले ने तीसरा प्रश्न पूछा, आपका धर्म क्या है? तो नीम का पेड़ बोला कि मेरे धर्म के बारे में मुझे थोड़ा और समय चाहिए आपको समझाने के लिए। तो बोले बताइए। कि मेरी जो जड़ें जमीन में बहुत नीचे गहराई में गई है, मैं जितना जा सकता हूं इतना गहराई में मेरी जड़ों को भेदता हूं, और मेरा जीवन हरा भरा रहे इसीलिए किसी को तकलीफ न हो ऐसे जल के बिंदु नीचे से लेकर मैं अपने को हरा भरा रखता हूं। यही मेरा धर्म है। मेरे हरे भरे रहने के लिए किसी का शोषण न हो, किसी को जरा भी तकलीफ न हो ऐसे। और आजकल तो हमारे यहाँ इजरायली पद्धति ड्रिप इरिगेशन से सब वाकिफ है कि एक एक बूंद हरा भरा रख सकता है।